Hello students, good morning to you all. How are you all? Fine? Okay, so students, today we are going to study subject grammar of class 3. Okay, yes, so in the previous lecture we have started lesson number 7. We have completed up till page 30. Now we are moving further with the next exercise. So we are going to learn today what is comparative degree. Okay, yes, so you will see in your grammar workbook. You will see here on the page 30 this definitions is given. Here we will see first of all what is definition, then we'll move further with the exercise. Okay, yes, so you can see what is here written in the first line. When we use an adjective to compare two people, things or feelings, it is called a comparative degree. So हम comparative degree किसको बोलते हैं? Comparative degree जब भी हम किसी two person or we are comparing two or things or feelings to a adjective, that time we are saying it as a comparative degree. Here we are adding in comparative, we can add here er. What we can add? Er we can add. What is given here? To the adjective to compare two people, things or feelings. Here we can add, what we can add here? Er to compare any feelings or any person or anything. Okay, here example it is given one old, old it is given. Okay, this is an example. It is given old, old. So this is an adjective. Here if you want to add anything, अगर इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो हम ओल्ड के लिए यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कंपैरेटिव में? वी विल ऐड हियर ई आर इन द कंपैरेटिव. तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ओल्डर बन जाएगा. ओके, यस. नाउ यू कैन सी हियर अनदर एग्जांपल्स इज आल्सो गिवन. Another second one, it is given young, young, young it is given. So for young, if we add here er in the adjective, it would become younger. तो ये हमारा क्या हो गया? This is known as the comparative degree. क्या बोलेंगे हम इसको? Comparative degree बोलेंगे. Okay. Next it is given to you here. Adjectives in the comparative degree also use the words more or less before them. Comparative degree में हम adjectives में in adjectives we also add more और less. हम more ऐड करते हैं या फिर less भी ऐड करते हैं comparative degrees में. Okay, yes. For example अगर यहाँ पे हमको example एक दिया है, first one it is given to you. अगर है यहाँ पे beautiful दिया है, ठीक है. अगर ब्यूटीफुल दिया है तो ब्यूटीफुल के लिए हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? मोर ब्यूटीफुल. व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड इन द कंपैरेटिव डिग्री? वी आर गोइंग टू ऐड हियर मोर ब्यूटीफुल. अगर इसकी जगह पे एक और एग्जांपल अगर हमको दिया हुआ है इंटरेस्टिंग, इन द सेकेंड वन इफ इट इज गिवन इंटरेस्टिंग, ओके, तो हम उसके लिए क्या है कंपैरेटिव में लगा सकते हैं? वी कैन ऐड हियर लेस इंटरेस्टिंग. यस और नो? So in comparative degree we can add er also, and in the adjective we can add here more before the adjective. Okay, so this would be the comparative degree. Here you can see the examples given in your workbook, page 31. See, this is the first example with the picture it is given. What is given? See, my uncle is dash than my brother. Here uncle and brother. What is given here? You can see uncle एंड ब्रदर. ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. हियर वी आर कंपेयरिंग टू होम? वी आर कंपेयरिंग पीपल. हम दो पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं. यस, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर? अगर यहाँ पे है माई अंकल इज स्ट्रॉन्ग इट इज गिवन. ओके, माई अंकल इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रदर इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. तो हमने दो पर्सन को यहाँ पे किसको कंपेयर कर रहे हैं? दिस. ओके, हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं. सो इसको कैसे लिखेंगे? माई अंकल इज स्ट्रॉन्गर. ओके, दिस इज एन एडजेक्टिव. यहाँ पे हम ई आर ऐड कर रहे हैं. सो इट विल बिकम माई अंकल इज स्ट्रॉन्गर देन माई ब्रदर. ओके, सो दिस इज योर कंपैरेटिव डिग्री. समझ में आया? यहाँ पे हमने दो पीपल को वो किया है, राइट? हम दो पीपल को कंपेयर कर रहे हैं. सो दिस इज अवर कंपैरेटिव डिग्री.
तो हमने स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव को यहाँ पे कंपैरेटिव में क्या बनाया, स्ट्रॉन्गर. लाइकवाइज इट इज अनदर एग्जाम्पल गिवन ऑफ अ film. Okay, so the film was dash than the book. So film was interesting and the book was also interesting. Okay, but film is more interesting, right? So here it is, the film was less interesting than the book. Book से कम interesting है, right? So here we are going to add here less before the adjective. Clear? We are starting with the exercise. C के साथ हम start कर रहे हैं. देखो, राइट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स. तो आपको इसकी कंपैरेटिव फॉर्म लिखने हैं. फर्स्ट वन आपको दिया हुआ है ब्राइट. इट इज गिवन टू यू ब्राइट. तो ब्राइट के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे कंपैरेटिव में, वी कैन राइट हियर ब्राइटर. सो ब्राइट, ब्राइटर. सेकेंड वन इट इज गिवन डर्टी. येस, यू कैन सी हियर इट इज गिवन डर्टी. सो फॉर डर्टी व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, डर्टियर. राइट. नेक्स्ट यहाँ पे बाकी सब में तो सेम है. देखो यहाँ पे आप लोगों को जब भी वाई दिया होगा एडजेक्टिव में, तो एडजेक्टिव के बाद जब आप कंपैरेटिव में उसको यूज कर रहे हो, सो यू विल रिमूव द वाई फ्रॉम हियर एंड देन यू आर गोइंग टू ऐड हियर IER. सो इट वुड बिकम डर्टियर. Okay, likewise in everything you are going to do. Here it is changed in another one, that is 6th number. It is given beautiful, that I have already explained you in the example. Beautiful if it is, so what you are going to write here, more beautiful. Yes or no? Yes. Okay, तो ये हमारा क्या हो गया, this is our comparative degree. Likewise in the 8th number also expensive. So क्या लिख सकते हैं, more expensive or less expensive, right? So this exercise you have to do likewise. Next we will turn the page. Page 32 पे देखो क्या दिया हुआ है आप लोगों को. Here fill in the blanks with the given adjective in the comparative degree. आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं. पिक्चर्स देखिए आपको कंपैरेटिव डिग्री में फील करना है. We will see first of all what is given. First number it is the pear is dash than the lemon. Here two examples are given to you, that is pear and a lemon. और हमको ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है स्वीट. हमको एडजेक्टिव दिया है. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको एडजेक्टिव क्या दिया हुआ है, स्वीट. ठीक है, तो यहाँ पे पेयर भी स्वीट है, लेमन है. ठीक है, तो पेयर स्वीट होता है बट लेमन हमको पता है कि सॉर टेस्ट होता है लेमन का, राइट. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर इज, क्या दिया हुआ है, द पेयर इज डैश देन द लेमन. सो स्वीट है तो हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव में हम क्या ऐड करते हैं, स्वीट की जगह पे स्वीटर. तो यहाँ पे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगी, स्वीटर. इट वुड बिकम द पेयर इज स्वीटर देन द लेमन. समझ में आया. आप लोगों को दो ऑप्शंस दिए हुए हैं. यू हैव टू कंपेयर दिस टू थिंग्स. उस दो चीज़ों को कंपेयर करके आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू राइट इट हियर. एडजेक्टिव का आपको यहाँ पे बनाना है कंपेरेटिव डिग्री. क्लियर. अब देखो सेकेंड नंबर दिया हुआ है. लाइकवाइज इट इज गिवन टू यू द सन इज डैश देन द बल्ब. सन है और बल्ब है. हमको दो चीज़ों को अगेन थिंग्स को कंपेयर करना है, राइट. सो यार सन इज ऑल्सो हमको यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है एडजेक्टिव ब्राइट. व्हाट इज इट इज गिवन, इट इज गिवन ब्राइट. सो वी हैव टू कंपेयर लाइकवाइज. सो व्हाट वी विल डू, द सन इज ब्राइटर देन द बल्ब. तो जो सन है वो बल्ब से क्या है, ब्राइट है. ओके, सो लाइकवाइज यू विल फिल ऑल द एग्जाम्पल्स. ओके, ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी है होमवर्क पार्ट में, राइट. नेक्स्ट यू आर गोइंग टू सी हियर ऑन द पेज 33. हियर अब यहाँ पे हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री. अब हमको ये एक्सरसाइज में पढ़ना है कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री. कंपैरेटिव वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. नाउ वी आर मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट part, that is our next degree. It is given superlative degree. Which is given, it is given superlative degree, right. So here what you are going to see in the exercise, when we use an adjective to compare more than two people or things or person. पहले हम comparative degree में क्या था, only one person were there. Yes or no? यस. अभी ये कंपैरेटिव में था. अब सुपरलेटिव में क्या है, मोर देन वन पर्सन.
मीन्स अगर प्लूरल में है, ये सिंगुलर में था तो हम कंपैरेटिव में देखते थे, अब हमको क्या देखते हैं, सुपरलेटिव। सो मोर देन वन पर्सन वी आर सीइंग हियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या ऐड करते हैं, वी ऐड EST। हम एडजेक्टिव के पीछे क्या लगाते हैं, EST ऐड करते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, अगर है स्वीट, स्वीट है तो स्वीट का कंपैरेटिव क्या होगा, स्वीटर, एंड इन द लास्ट इट वुड बिकम स्वीटेस्ट, राइट। अब जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल था तो हम मोर ब्यूटीफुल लिखते थे, तो सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, और लेस इंटरेस्टिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लीस्ट इंटरेस्टिंग, राइट। ओके, समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है। जैसे अभी यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है, व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन वाई वी चेंज इट टू अ IST। पहले हम क्या कर रहे थे, IER लगा रहे थे, है ना, कंपैरेटिव में। अब हमको सुपरलेटिव में क्या करना है, यहाँ पे अगर दिया है TIRTY, डर्टी है तो Y है, तो Y को हम किस में चेंज करेंगे, DIRTIEST। अब हमको किस में चेंज करना है, डर्टीएस्ट में चेंज करना है। Y की जगह पे I लिखेंगे, लास्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, EST। ओके, लाइकवाइज सी यू कैन सी हियर इन द एक्सरसाइज इट इज गिवन। एक्सरसाइज E में आपको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है लेजी, LAZY। सो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव लिखना है, यहाँ पे सुपरलेटिव लिखना है। ओके, 2 ऑप्शंस इट इज गिवन लाइकवाइज। सो आप लोग क्या करोगे, लेजी है, Y है, तो Y का हम कंपैरेटिव में क्या करते हैं, LAZIER, लेजियर, और यहाँ पे क्या करते हैं, लेजीएस्ट। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग यू, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट। तो इस तरह से कंपैरेटिव में क्या है, सिर्फ हम लोग एक पर्सन या चीज़ या इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, और सुपरलेटिव में क्या है, जब भी हम लोग मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तब हमको सुपरलेटिव में जाना है। ओके, लाइकवाइज सेकंड इट इज़ गिवन, सेकंड नंबर में आप लोगों को दिया है टॉकेटिव, राइट। टॉकेटिव इट इज़ गिवन, अब कंपैरेटिव है तो हम क्या लिखेंगे, मोर टॉकेटिव, एंड यू विल राइट हियर मोस्ट टॉकेटिव, राइट, मोर टॉकेटिव, मोस्ट टॉकेटिव। थर्ड नंबर में क्या है देखेंगे हम लोग, स्मार्ट। स्मार्ट है तो कंपैरेटिव में हो जाएगा स्मार्टर, और लास्ट वाले में हो जाएगा स्मार्टेस्ट। यस, लाइकवाइज यू हैव टू डू। सो आप लोग पूरी एक्सरसाइज उसी तरह से करोगे पेज 33 पे। नाउ यू विल टर्न द पेज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है आप लोगों को, अंडरलाइन द डिग्री, पेज 34 पे देखो, अंडरलाइन द डिग्री ऑफ अ कंपैरिजन इन द गिवन सेंटेंसेस। क्या दिया हुआ है, हमको उस तरह से डिग्री पहचानना है। फर्स्ट इट इज गिवन क्वेश्चन, दिस इज द डैश ड्रेस इन द शॉप। तो आपको दिया हुआ है चीप, चीपर, चीपेस्ट। ओके, तो आपको इसमें डिग्री देखना है, कंपैरिजन। सो ड्रेस है, ओनली वन ड्रेस इज देयर, सो दिस इज द चीप ड्रेस इन द शॉप। शॉप में बहुत सारी ड्रेसेस हैं, उसमें से एक ड्रेस जो है वो क्या है, चीप है। सो दिस इज द चीप ड्रेस इन द शॉप। नेक्स्ट इट इज मदर टेरेसा वॉज अ जेंटल एंड अ डैश लेडी। सो शी वॉज वेरी जेंटल, राइट। सो मदर टेरेसा वॉज अ जेंटल एंड अ काइंडेस्ट लेडी, राइट। नाउ है द हिमालयाज इज अ मच डैश देन द एल्प्स। So high, higher, highest. Himalayas is much higher than the Alps. Okay. Likewise you will do like, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, you have to find out the degree. Now next it is given, there are some adjectives that do not follow the rule
then regulation of converting to comparative or a superlative form. फॉर एग्जाम्पल अगर गुड है तो गुड में हम गुडर नहीं लिख सकते यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने देखा कंपैरेटिव में क्या करते हैं हम ER लगाते हैं और यहाँ पे EST लगाते हैं, राइट। बट कोई कोई ऐसे वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं that are not following the rules and regulations of the comparative degree. तो अगर यहाँ पे good है, suppose it is given good, adjective ये दिया हुआ है, तो आप इसकी जगह पे यहाँ पे comparative में gooder नहीं लिख सकते और यहाँ पे goodest नहीं लिख सकते, ओके, we can't write, this is wrong. तो अगर adjective में good दिया है हमको तो उसके लिए हम क्या करेंगे, good, better, best. Right? Good, better, best. This is the perfect comparative and the superlative degree for the adjective form. जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हुआ है, देखो you can see here on the page 35 it is given this page. Here is a list of irregular comparative and superlative degree. ये कुछ लिस्ट है जो adjectives irregular है, ओके, जो regulations rules follow नहीं करते, ओके, उस तरह से आपको यहाँ पे बैड दिया है। नेक्स्ट आपको दिया है बैड, तो बैड का हम बैडर लिख सकते हैं, नो, दिस इज रॉन्ग, हम बैडर नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बैड, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है बैड है, तो आप लोग क्या करोगे इसका वर्स, एंड इन द लास्ट वन व्हाट यू विल राइट वर्स्ट, right? Are you understanding? Bad, worse and worst. We can read from here. Positive, comparative and superlative. Good, better, best. Bad, worse, worst. Many, more, most. Much, more, most. Little, less, least. Here, okay, this you have to remember how it is, okay? मेक अ सेंटेंस यूजिंग सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड्स का हमको सुपरलेटिव फॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो बैड है तो बैड का सुपरलेटिव क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है वर्स्ट, तो दिस इज द वर्स्ट प्लेस। उस तरह से आपको सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। यू कैन टर्न द पेज, दिस इज योर होमवर्क पार्ट, यू विल डू बाय योर सेल्फ, ओके, बिकॉज दिस इज एन एक्टिविटी। तो पिक्चर देखिए, आपको ये चीज़ अपने आप फील करनी है। Another it is given fun time. Find the names of this well-known characters in the grid. Then are formed popular poems and stories. Some words go across, some words go down. So यहाँ पे आपको puzzle दी हुई है, इसमें से आपको words find करने हैं और यहाँ पे आपको questions दिए हुए हैं। उस questions के आपको one word answer find करने हैं जो आपको यहाँ से इसमें से मिलेंगे। Okay, so this is also your homework part. Okay, page 37. We have completed up till page 37. We'll meet in the next lecture with the new chapter 8. Okay, that we are going to learn in the next video. Okay, next lecture में हम पढ़ेंगे, तब तक आप लोगों को page 37 तक complete करना है। Okay, this you have will got the PDF also in the school application. Okay, so you have to do likewise. Okay, students. Okay, so we'll meet in the next lecture with a new chapter. Till that, bye bye. Thank you.